Well, just 5 days are left for Rahul Gandhi, who has been elected both from Wayanad and Raebareli, Lok Sabha seats to pick between the two. After a Thanksgiving ceremony in Raebareli yesterday, the Congress MP today is in Kerala and is still keeping everyone guessing about his final decision. However, there is one commitment that he gave the people who voted for him, that his decision will make the electorate of both the seats happy, from Raebareli and from Wayanad. This was Rahul Gandhi's first appearance in the state after winning the Lok Sabha seat in Wayanad by a huge margin for the second consecutive time. And while referring to his dilemma, he also took an interesting potshot at the Prime Minister. Now I have a dilemma in front of me. The question is, will I be Member of Parliament of Wayanad or will I be Member of Parliament of Raebareli? Unfortunately, like the Prime Minister, I am not guided by God. I am a human being. But unfortunately, I do not have this luxury because I am a human being and God does not order me. In fact, for me, it is much simpler. My God is the poor people of India. My God is the people of Wayanad. So for me, it's very easy. I just go talk to the people and my God tells me what to do. I will commit to you is that both Wayanad and Raebareli will be happy with my decision. So the question now is, if not Rahul, then who? Who will replace Rahul Gandhi in the by-poll that will be held in Wayanad or in Raebareli? Posters, interestingly, today came up in Wayanad where supporters requested that Priyanka Gandhi Vadra, somebody who actually ran the entire campaign for Rahul Gandhi and for Kishori Lal Sharma in Raebareli and Amethi respectively, that she now should be given a chance to fight whichever seat her brother replaces. हमारा दिल ये बोलता है कि हमारे लिए राहुल जी चाहिए. Yeah, it is very sad movement. So Rahul Gandhi consistently was coming here and he's a very popular leader. Unlike other leaders, he's very active and he has done a lot of work for Wayanad. And all the time, he fight against communal force which is BJP. अच्छा है प्रियंका गांधी हो तो इधर राहुल से ज्यादा बहुमत में जीत जाएगा. But even as the chorus for Priyanka from Wayanad grows, there are indications that she may have been asked to contest Varanasi earlier. In fact, it was made very, very clear by Rahul Gandhi himself, who said that had Priyanka Gandhi, and she was asked by him to fight from Varanasi, had she actually done so, she could have actually ended up defeating the Prime Minister. निश्चित तौर से हम लोगों ने बहुत पहले ही आदरणीय प्रियंका जी से आग्रह किया था और उसे निवेदन किया था कि आप आइए बनारस, आप हम सब लोग एक मजबूत आपको एक अपनी बहन और एक भाई की तरह मिलकर चुनाव यहाँ लड़ेंगे और निश्चित तौर से मोदी को हराएंगे. पर मैं समझता हूं कि उनको पूरे देश के अंदर काम करना, पूरे देश के अंदर उनको प्रचार करना, पार्टी की तरफ से जो निर्देश उनको मिला होगा उसका उन्होंने पालन किया. All right, somebody who actually knows the workings of the Congress party and in particular Priyanka Gandhi, Acharya Pramod Krishnam, joins us live on exclusive. आचार्य जी, आप कह रहे थे कि प्रियंका जी को लड़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है. अब तो पोस्टर भी छप गए हैं कि बहन प्रियंका लड़ेंगी. आपको क्या लगता है, रायबरेली या वायनाड? देखिए पदमजा, देश में लोकतंत्र है. लोकतंत्र में हर आदमी को ये स्वतंत्रता है कि वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है. इसमें तो लेकिन बट है ही नहीं. जहां तक सवाल है प्रियंका गांधी जी का, तो प्रियंका गांधी जी भी कहीं से लड़ सकती हैं. लेकिन सवाल यह है कि उनको लड़ाया क्यों नहीं गया? क्या उनको लड़ने से किसी ने रोका? अब तक क्यों नहीं लड़ाया गया? 2019 में क्यों नहीं लड़ाया गया? 2024 में क्यों नहीं लड़ाया गया? उनको राज्यसभा क्यों नहीं भेजा गया? किसने रोका? ये बड़ा सवाल है ना. प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने से रोक कौन रहा था? प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने से किसने रोका? ये बड़ा सवाल है. पर कांग्रेस की माने तो लड़ेंगी, कब लड़ेंगी, ये तो उनका फैसला है. नहीं, बट कांग्रेस की माने तो किसी ने नहीं रोका. यहां तक कि खुद राहुल गांधी ने कल रायबरेली में जाकर के बोला, एंड विल जस्ट प्ले दैट आउट. उन्होंने बोला कि भाई मैंने तो इनको बोला था कि आप जाकर के वाराणसी से लड़ जाइए, और अगर लड़ गई होती तो 2-2.5 लाख से तो प्रधानमंत्री खुद हार जाते. लेट्स क्विकली लिसन इन टू राहुल गांधी, प्रमोद आचार्य जी, एंड देन आई विल कम बैक टू यू.
और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। तो क्या ऐसी अटकलें थी कि प्रियंका गांधी वाराणसी से लड़ने का उनको एक तरीके से सजेशन दिया गया था? और देखिए पदमजा, पॉलिटिक्स में इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं हुआ करता है। ये सब इररिलेवेंट बातें हैं। अब राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी लड़ जाती तो 2-2.5 लाख से नरेंद्र मोदी हार जाते। ये तो इस तरह की बात होगी ना, जैसे गांव में कहावत है कि अगर चाची के मूछें होती, दाढ़ी होती तो उन्हें चाचा कहते। व्हाट इज दिस? टोटली नॉनसेंस। अब अगर प्रियंका गांधी जी मोदी जी को हरा सकती थी तो फिर राहुल गांधी जी ने ये फैसला क्यों नहीं लिया? नंबर 1 बड़ा सवाल ये उठता है। नंबर 2, कांग्रेस को मालूम था कि मोदी जी को प्रियंका गांधी हरा सकती हैं, तो प्रियंका गांधी को लड़ाया क्यों नहीं, रोका किसने? तीसरा सवाल उठता है कि जो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़े हैं अजय राय जी, वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और वो पिछले कई बार से जो है मोदी जी के खिलाफ चुनाव वो ही लड़ते हैं। तो अगर वो लड़ते हैं तो ये तो फिर उन्होंने जो मेहनत की है और उनके साथ जो लोगों ने मिलकर के उन्हें चुनाव लड़ाया है और उनके चुनाव लड़ाने का जो फैसला कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने किया, तो ये राहुल गांधी जी का जो ये बयान है ये तो खुद कांग्रेस के फैसलों पर ही सवाल उठाता है। क्या राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी किसी गलत कैंडिडेट को उन्होंने वहां चुनाव लड़ाया और उन्हें मालूम था कि प्रियंका गांधी लड़ जाती तो मोदी जी हार जाते? तो मुझे लगता है ये बातें सिर्फ चर्चा का विषय जरूर बनती हैं। इसमें कोई पॉलिटिकल आधार मुझे नहीं लगता कि कोई दूरदर्शिता है। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसी के खिलाफ किसी को चुनाव लड़ा देने से, और वो एक अलग विषय है कि योगी जी के खिलाफ चंद्रशेखर रावण चुनाव लड़ने गए थे गोरखपुर में, तो क्या हुआ? बुरी तरह हारे थे, जमानत भी नहीं बची थी। ऐसे ही राहुल गांधी जी के खिलाफ एक बार डॉक्टर कुमार विश्वास लड़े थे 2014 में। ऐसे ही बहुत बहुत बड़े नेताओं के खिलाफ चुनाव लड़ा जाता है। मैं खुद भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने गया था लखनऊ में, मैं भी हारा। और कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े लीडर हार भी जाते हैं, जैसे ममता बनर्जी खुद चुनाव हार गई थी लेकिन पूरी पार्टी उन्होंने जिताई। उड़ीसा में नवीन पटनायक चुनाव हार गए, इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी गुना से जो चुनाव हारे, पिछला चुनाव बुरी तरह हार गए थे, तो वो तो अपने बहुत ही छोटे कार्यकर्ता से हार गए थे। तो सवाल यह है कि एक सीट से चुनाव लड़के जीतना या हारना ये एक अलग पहलू है, अलग विषय है राजनीति में। लेकिन एक लीडरशिप को बिल्डअप करना, लीडरशिप को आगे लाना और एक व्यक्ति की लीडरशिप को पूरे देश में मानना, ये एक अलग विषय है। नरेंद्र मोदी जी का काशी में वोट कम हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की वजह से पूरे देश के अंदर ये जो 240 सीटें आई हैं, ये किसके नाम पे आई हैं? ये तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पे आई है कि जो व्यक्ति जिसके चेहरे पे पूरे देश में देश की जनता वोट दे रही है। उड़ीसा की सरकार किसके नाम पे बनी? आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने खुद कहा अपनी स्पीच में कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से हम मिलकर के जीते। बिहार का रिजल्ट क्या आया? तो सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी जी को ये सोचना चाहिए कि कांग्रेस की जो दुर्दशा हो रही है ये क्यों हो रही है? ये इन्हीं बातों के कारण हो रही है। इनफैक्ट 2014 में कांग्रेस की सीटें कितनी थी, 2019 में कितनी थी, 2024 में। अब सवाल इस बात का है, नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी एनडीए की बैठक को एड्रेस करते हुए कि बीजेपी को इतनी सीटें मिली हैं जितनी सीटें 2014, 2019, 2024 में तीनों चुनावों में मिलकर के कांग्रेस को नहीं मिली। और आपको याद होगा, आप बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप याद करिए 1996 में नरसिम्हा राव के नेतृत्व में चुनाव हुआ था। जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, तो उसमें जो कांग्रेस जीत के आई वो लगभग 140-41 सीटें जीती। 140 से 41 सीट नरसिम्हा राव के नेतृत्व में जीती। तो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने यह कहा था कि ये कांग्रेस की सबसे बुरी हार है और नरसिम्हा राव सबसे कमजोर नेता हैं।
उसके बाद जो चुनाव हुआ 1998 में तो सीताराम केसरी जी के नेतृत्व में हुआ। सीताराम केसरी जी को भी सबसे कमजोर नेता सिद्ध किया गया, क्योंकि उनके नेतृत्व में जब चुनाव हुआ तो 1998 में 141 या 142 सीट आई। तो जिस नेता के नेतृत्व में चुनाव हुआ 140 सीट आई, 141 सीट आई, यानी कि नरसिम्हा राव सीताराम केसरी। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है 2014, 2019, 2024। यहां सीटें आ रही हैं 40, 42, 52, 57, 58, 99, 98। तो राहुल गांधी जी को खुद आत्मचिंतन करना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, आत्म साक्षात्कार करना चाहिए कि ये जो पिछले 14 सालों से 15 सालों से पार्टी का ग्राफ निरंतर गिर रहा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? Okay, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? I will come back to that because I have a counter. Acharya ji, I have a counter question on that particular point. But we're just getting news that KPCC chief has hinted that Rahul Gandhi will end up relinquishing Wayanad Lok Sabha seat and will stay on in Raebareli. Let's quickly listen to him. I will come back to you then. നമ്മൾ ദുഃഖിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മൾ മനസ്സിൽ പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇന്ത്യയെ നയിക്കേണ്ടുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വയനാട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതെല്ലാ ആളുകളും മനസ്സിലാക്കുക, അത് ഉൾക്കൊള്ളുക. പ്രിയപ്പെട്ട രാഹുൽജിക്ക് എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരുക. ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റിക്സിൽ ഒരു അനശ്വര നേതാവായി രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉയരാൻ പോകുമ്പോ അതിന്റെയൊക്കെ പിറകിൽ ഞാനും നിങ്ങളും പിന്തുണയുമായി പോകണമെന്ന് മാത്രം ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം ചെയ്യുക. तो आचार्य जी, एक बात तो तय लग रही है कि इंडिकेशंस ऐसे हैं कि राहुल गांधी रायबरेली में रहेंगे, वायनाड को छोड़ देंगे। तो ये तो उन लोगों को जवाब होगा जो कहेंगे कि वो यूपी छोड़ के भाग गए। इज दिस ऑल्सो अ साइन कि अब यूपी में कांग्रेस के रिवाइवल की तरफ वो काम करेंगे? और जहां तक ट्रैक रिकॉर्ड का बात है, 2014, 2019 का ट्रैक रिकॉर्ड आप सही बोल रहे थे, बट रिवाइवल भी तो हुआ है। 1 से 6 सीटों पर गई है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, उनका बिहार में सीटें बढ़ी हैं, नेशनली उनकी ऑलमोस्ट डबल हो गई है, 99 पे पहुंच गए हैं। तो उसका भी श्रेय जाएगा उनको। पद्मजा, राहुल गांधी जी रायबरेली छोड़ेंगे या रायबरेली को अपने पास रखेंगे, ये बड़ा सवाल नहीं है। उनके वो 2 सीटों से जीते हैं, उनकी इच्छा है वो वायनाड छोड़ दें, उनकी इच्छा है रायबरेली छोड़ दें। ये उनका फैसला है कि किसे रखेंगे, किसे छोड़ेंगे, कौन सी सीट बचेगी, कौन सी सीट नहीं बचेगी। सवाल ये नहीं है, सवाल ये बड़ा है कि कांग्रेस देश में कहां बचेगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहां है? और वो कांग्रेस को रिवाइव कर रहे हैं ना, 1 से 6 सीटों पे पहुंच गए। ये सीट कांग्रेस की पद्मजा, ये रिवाइवल नहीं है, ये कांग्रेस का रिवाइवल नहीं है। ये तो बीजेपी के जो विरोधी वोट है उसको पोलराइज होकर के पढ़ना था, वो पड़ गया। अगर इसी में आप 2019 का चुनाव निकालो, जिसमें मायावती और अखिलेश यादव एक होकर के लड़ रहे थे, कांग्रेस अलग लड़ रही थी, तो कांग्रेस की स्थिति क्या थी? 2%, 3%, 4%, 6% वोट, 6-7% वोट। अब क्योंकि अखिलेश यादव का कैंडिडेट नहीं है वहां, तो फिर वो पूरा का पूरा जो एंटायर अपोजिशन का वोट है, जो एंटी बीजेपी वोट है, वो एक साथ मिल करके आपको मिल गया। कांग्रेस की जगह कोई और होता तो उसको भी मिल जाता। तो ये लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है। ये जो वोट बढ़ रहा है, ये जो उत्तर प्रदेश में सीटें बढ़ी हैं, ये राहुल गांधी जी की लीडरशिप की वजह से नहीं बढ़ी हैं। इसको थोड़ा गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अगर 2027 में जब चुनाव होगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, तो क्या समाजवादी पार्टी जो है 400 सीटों पर लड़ेगी, या समाजवादी पार्टी कितनी सीट कांग्रेस को छोड़ेगी? अगर समाजवादी पार्टी 5 सीटों के हिसाब से भी छोड़ती है तो कितनी सीट बनती है? 25 सीट पे। तो क्या 25 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी? नहीं लड़ेगी। अगर कांग्रेस को 100 से ज्यादा सीटें अखिलेश यादव छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, तो प्रश्न ये पैदा होता है कि ये जो लीडर की क्वालिटी क्या है कि उसके दम पर वोट पड़े, उसकी लीडरशिप को एक्सेप्ट करके देश की जनता जब उसके साथ जुड़ती है, जैसे नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ी। नरेंद्र मोदी जी का वोट है 2014 का वोट, 2019 का वोट, 2024 का वोट।
लेकिन राहुल गांधी जी का वोट जो है नहीं है, इसको नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी का वोट और दूसरी और नॉन बीजेपी पार्टी का वोट, प्लस बिहार में लालू यादव जी की पार्टी का वोट, मार्क्सवादी का वोट, दूसरी पार्टी का वोट, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का वोट, ऐसे ही सारी पार्टियों का जो वोट बैंक है या जो भी उनका कार्यकर्ता है, उसके बेस पे चुनाव लड़ा गया। तो इसको केवल ये नहीं कहा जा सकता है कि राहुल गांधी जी की लीडरशिप में कांग्रेस ऊपर आ रही है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। ठीक है आचार्य जी, thank you very much as always for joining us with your analysis, but these are interesting times because which seat Rahul Gandhi chooses will also send across a very important message of where the Congresses and Rahul Gandhi's politics will be in the next few days. Thanks for watching.